Hello everyone. Let's start the next video of the mathematics. In last lecture we have started our next chapter, that is trigonometric functions. हम लोगों ने trigonometric functions start किया था. We have gone through the trigonometric table that was for all the functions 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree. ये table के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे. ठीक है. Next we have started about the quadrant system. What's the new thing that is introducing in the 11th trigonometry, that is quadrant system. Now what is quadrant system? We have studied it in last video. I am recalling it again, that we have divided the entire space into four quadrants. We have divided the entire space into four quadrants moving anti-clockwise direction. Moving in anti-clockwise direction, that is first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant in anti-clockwise direction. We have labeled it as 0 degree, 90 degree, 180 degree, 270 degree and 360 degree. 360 degree comes along with the 0 degree. Okay. फिर उसके बाद में हमने इसके एंगल्स डिवाइड किए थे. व्हाट वर द एंगल्स? दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा 90 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट 270 plus theta, 360 minus theta and also minus theta. Minus theta also lies in the fourth quadrant. So fourth quadrant basically comprises of the three angles, that is 270 plus theta, 360 minus theta and also minus theta. Now talking about the functions in the quadrants, we have seen that in first quadrant all the functions are positive, that is sine, cos, tan, cosec, sec, cot. All the six functions are positive in the first quadrant. Moving to the second quadrant, in second quadrant only two functions are positive, rest all four functions are negative. Now which two functions? Sin theta and cosec theta. ये दोनों फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, बाकी के चार फंक्शन नेगेटिव होते हैं. क्लियर? थर्ड क्वाड्रेंट tan theta and cot theta are positive, rest all four functions are negative. In third quadrant, tan theta and cot theta, reciprocal of tan theta and cot theta are positive, then other four are negative. And in the fourth quadrant, cos theta and sec theta, cos theta and the reciprocal of cos theta, that is sec theta, is positive, rest all four functions are negative. This was the second thing. First thing, quadrant and angles. Second thing, positioning of functions, where they are positive and where they are negative. Now third and the most important and the last thing but not the least, that if we are getting the reference angle as 90 degree and 270 degree, then function will change according to their question function. And if we are getting the reference function as 180 degree and 360 degree, then the function will remain same. 90 degree और 270 degree पर function change होगा and 180 degree and 360 degree पर the function will remain same. ये वाली चीज हमने देख ली थी. और उसके बाद में फिर functions के फॉर्मूले का क्रिएशन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था. We have started creating the formulas. We don't have to remember the formulas, we have to remember the criteria for creating the formulas. ठीक है. अब आगे के फॉर्मूलेस हम लोगों ने 180 प्लस थीटा, आई थिंक 180 प्लस थीटा तक हम लोगों ने देख लिया था. वी हैव टू स्टार्ट विद 270 माइनस, 270 प्लस, 360 माइनस एंड माइनस थीटा. 4 वी आर लेफ्ट विद. ठीक है. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वी आर टेकिंग 270 माइनस थीटा. ओके, सो वी आर राइटिंग ऑन साइन 270 माइनस थीटा, cos 270 minus theta, tan 270 minus theta, same for cosec, sec and cot. Now what is 270 minus theta? 270 minus theta means third quadrant. 270 minus theta means third quadrant, and third quadrant we are having tan theta and cot theta positive. हम लोगों ने देखा था कि tan theta और cot theta थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है. तो we will take the tan theta and cot theta as positive, rest all negative. अब we are having the reference angle 270. हम लोगों के पास reference angle 270 है, तो 270 पे फंक्शन चेंज होता है. In the reference angle of 270, the function get change according to their pairs, sin cos, tan cot, cosec cot, cosec sec. ठीक है. तो sin theta will convert into cos theta, cos theta will convert into sin theta,
tan theta will convert into cot theta, cosec into sec, sec into cosec, and cot into tan. These are the required formulas. Just take the screenshot of it. Clear? Now, moving on to the next. The next is after 270 minus theta, अब अगला आता है हमारा 270 प्लस थीटा. तो हमारे फॉर्मूले सारे क्रिएट हो जाएंगे साइन 270 प्लस 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 प्लस. ठीक है. नाउ व्हाट इज 270 प्लस थीटा? द रेफरेंस एंगल इज स्टिल 270. दैट मीन्स द फंक्शन विल चेंज. Sin will change into cos, cos will change into sin, tan will change into cot, cot will change into tan, cosec will change into sec, and the sec will change into cosec. So reference angle, if the reference angle is 270 degree, then the function will definitely is going to change. तो function change करते हैं पहले. sin theta का cos theta into sin, tan theta into cot, cosec into sec, sec into cosec, and cot into tan. Now we are moving in fourth quadrant. 270 plus theta, that means it is fourth quadrant. Now in the fourth quadrant only two functions are positive, that is cos theta and the reciprocal of it sec theta. Cos theta और sec theta positive है, rest all the functions are being negative. तो cos theta और sec theta में हम positive symbol लगाएंगे, that rest all negative. Cos theta and sec theta positive, rest all negative. This is the conversion for 270 plus theta. Screenshot it, take the image. Clear? Now next. Now the next angle is 360 minus theta. 360 minus theta. Write down the formulas creation. Sin 360 minus theta, cos 360 minus theta, tan 360 minus theta, cosec 360 minus theta, sec 360 minus theta, and cot. So 360 minus theta. Now the reference angle is 360. That means the function will remain same. The function will not change. Function change नहीं होगा. Therefore the function will be same. Sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, and cot theta. Now we know that in the fourth quadrant cos theta and sec theta is positive, rest all are negative. So cos theta and sec theta positive, rest all negative. These are the required formula, and the same conversion is for minus theta. माइनस थीटा के केस में भी सेम यही रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से 180 एंड 360 पर फंक्शन चेंज नहीं होता, सिमिलरली एट द केस ऑफ 0 डिग्री द फंक्शन विल नॉट चेंज एट ऑल. ठीक है, तो सेम कन्वर्जन यू विल राइट फॉर माइनस थीटा. दैट मींस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा. ओके, जस्ट नोट इट डाउन एंड वी विल स्टार्ट नेक्स्ट. ओके, नाउ we are starting with the questions of this quadrant system. अब इन quadrant system के questions को start करना है. ठीक है, start करते हैं first question. For example, we are having sin 315 degree. We are having sin 315 degree. Now हमको यहाँ पे करना रहता है, एक question को solve करने के multiple तरीके हो सकते हैं. We have to start. ठीक है, यहां पर हमको ये देखना है कि वट एवर द एंगल इज गिवन, विच इज द क्लोजेस्ट रेफरेंस एंगल टू इट. जो भी एंगल हमको दे के रखा है उसके क्लोजेस्ट रेफरेंस एंगल कौन सा है. दैट मींस व्हाट इज रेफरेंस एंगल, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री. 4 रेफरेंस एंगल वी आर हैविंग. तो हमको ये देखना है कि जो क्वेश्चन में एंगल गिवन है उसके नियरेस्ट रेफरेंस एंगल कौन सा है. नाउ सी, to 315 degree we have two closest nearest angle, one is 270 and another is 360. 315 डिग्री 360 के भी पास में है और 270 के भी पास में है. हम लोग दोनों से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों से आंसर करेक्ट आएगा एंड बोथ आर द राइट मेथड्स. ठीक है, वी विल सॉल्व विद बोथ मेथड्स. फिर आपका एग्जाम में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है. करेक्ट. हम लोग एक बार 270 लेकर सॉल्व करेंगे, एक बार हम लोग 360 लेकर सॉल्व करेंगे. ओके, स्टार्टिंग विद 270. नाउ सी, वी हैव द फंक्शन साइन, यहां पर साइन लिखा,
315 डिग्री। अब 315 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 270 रेफरेंस एंगल में ब्रेक करना है। पहले हमारा मेन मोटिव क्या है, वी हैव टू ब्रेक इट इनटू रेफरेंस एंगल विद रेफरेंस टू द मेन रेफरेंस एंगल। तो 315 डिग्री 315 डिग्री को वी कैन राइट 270 डिग्री प्लस 45। 315 डिग्री को क्या लिखा, 270 प्लस 45, दैट इज अगेन 315 डिग्री। नाउ सी, हम लोगों ने अभी फॉर्मूलाज पढ़े, साइन 270 प्लस थीटा। 270 मतलब अब रेफरेंस एंगल क्या, 270 मतलब फंक्शन चेंज होगा, तो साइन का हो गया कॉस। 270 था, इन 270 फंक्शन चेंज होता है तो साइन का हो गया कॉस। नाउ नेक्स्ट 270 प्लस थीटा। अब 270 प्लस थीटा दैट मींस फोर्थ क्वाड्रेंट, वी हैव टू चेक द एंगल्स। हमने जो एंगल्स पढ़े ना, तो 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन थीटा इज नेगेटिव। क्वेश्चन किसका है, साइन थीटा का। बट फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट ऑल द फंक्शंस आर नेगेटिव, देयरफॉर आवर आंसर विल कम इन नेगेटिव। माइनस के साइन के साथ में आएगा, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। हम तो साइन का फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं तो माइनस, और फंक्शन इसलिए चेंज हुआ क्योंकि 270 पे फंक्शन चेंज होता है। नाउ साइन 270 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। माइनस क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, कॉस इसलिए क्योंकि फंक्शन चेंज हो जाएगा 270 पे। तो साइन 270 प्लस थीटा, ये हो गया अपना थीटा। साइन 270 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा, सो दिस विल बिकम माइनस कॉस 45। अब माइनस cos 45, what is the value of cos 45? 1 by root 2. This is the answer. Clear? Now, अब यही आंसर जो 270 के रेफरेंस एंगल से करा है, यही हम ट्राई करते हैं एक बार 360 के रेफरेंस एंगल से। देखो 360 साइन 360। नाउ अब मुझे अगर 315 को लिखना है विद रेफरेंस टू 360, तो व्हाट आई विल राइट, 360 माइनस 45। 360 में से अगर 45 माइनस कर दोगे तो इट विल बिकम वापस 315 डिग्री। नाउ 360 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, बिकॉज इन द केस ऑफ 0, 180 एंड 360 द फंक्शन रिमेन सेम, दैट मींस साइन। नाउ 360 माइनस थीटा, 360 minus theta is again fourth quadrant. 360 minus theta is again fourth quadrant, and in fourth quadrant sin theta is negative. We are talking about sin theta, so sin theta is again negative. That means we have to apply a minus sign. And 360 sin 360 minus theta, so minus sin theta. Theta is 45 degree. So minus sin 45. Sin 45 is again 1 by root 2. See, in both the cases we are getting the same answer. तो either आप ये मेथड अप्लाई करो या ये मेथड अप्लाई करो, it is your choice. Both are correct and both will give the right answers. So second question start करते हैं अब अपन। Second question is cosec 1320 डिग्री। cosec 1320 डिग्री। अब इसकी वैल्यू हमको निकालना है। Now this is the important question, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न चेंज होने वाला है। Now see, अगर मैं इस क्वाड्रेंट सिस्टम में पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता हूं, दैट मींस इट इज 360 डिग्री। अगर मैं क्वाड्रेंट सिस्टम में यहां पर पूरा सर्कल एक कंप्लीट करूंगा तो दिस इज 360 डिग्री। नाउ व्हाट, मेरे पास है 1320 डिग्री, 1320 डिग्री, तो मेरा सर्कल यहां पे 360 डिग्री पे तो कंप्लीट हो गया। दैट मींस नाउ आई हैव टू कीप रिवॉल्विंग अगेन एंड अगेन। एक बार 360 डिग्री कंप्लीट हुआ, अब मैं फिर से वापस स्टार्ट करूंगा सर्कुलेट करना। तो वापस जब मैं यहां पर आऊंगा तो 360 प्लस 360, तो अगेन इट इज 720। दो बार घूम गया मैं सर्कल तो 720 डिग्री, लेकिन अभी भी मेरा ना मुझे 1320 डिग्री तक पहुंचना है, मैं सिर्फ अभी 720 तक पहुंचा हूं। तो जब तक मैं नियरेस्ट टू मेरे रेफरेंस एंगल नहीं पहुंच जाता, आई हैव टू कीप रिवॉल्विंग एंड रिवॉल्विंग। 720 डिग्री अगेन हम लोग घूमेंगे तो दिस विल कम 1080 डिग्री, 1080। अभी भी नियरेस्ट नहीं पहुंचा। नाउ अगेन आई हैव टू कीप रिवॉल्विंग, दिस इज 1440 डिग्री। अब थोड़ा सा मैं इसके नियरेस्ट पहुंच गया हूं। अब हम देखते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। सी,
अभी भी मैं इससे बहुत ज्यादा करीब तो नहीं पहुंचा हूं, लेकिन हाँ नियरेस्ट पहुंच चुका हूं मैं। तो अभी मैं अगर यहाँ पे अगर मैं पूरा ना घूमते हुए, अभी मैं जैसे 360 घुमा, तो 360 ना घूमते हुए सिर्फ 180 घूमता, एक बार 1080 तक पहुंचा, मुझे इसके नियरेस्ट पहुंचना है, तो मैं कितना ट्रेवल करा मैंने 180, 1080 में 180 ट्रेवल करोगे तो ये हो जाएगा 1260। नाउ आई एम नियरेस्ट टू दिस 1260 पे मैं नियरेस्ट पहुंच गया। अब देखो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि आई हैव टू स्विच ऑन टू द रेफरेंस एंगल ऑफ आइदर 180 डिग्री और 360 डिग्री। मैं बनती कोशिश ये करूंगा कि मेरा रेफरेंस एंगल या तो 180 डिग्री हो या 360 डिग्री हो, क्योंकि 180 डिग्री और 360 डिग्री ऐसे तो रेफरेंस एंगल होते हैं जिसमें फंक्शन चेंज नहीं होता है, जिसमें फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो मेरी कोशिश है कि 180 डिग्री या 360 डिग्री पर ही हम लोग स्विच करेंगे। नाउ सी कॉसेक 1320 को मैंने लिखा 1260 प्लस 60 डिग्री। ये 1260 अब मेरा क्या रहेगा रेफरेंस, क्योंकि वी आर इन द पोजीशन ऑफ 180। यहां पर देखा जाए तो देखो ये हो गया 180, फिर 360, फिर एक और 180, फिर एक और 180, फिर एक और 180, फिर एक और 180, ऐसे चलते जा रहा है। मतलब हम लोग 180 के रेफरेंस से चल रहे हैं, तो 1260 को हम लोग क्या मान के चलेंगे, रेफरेंस एंगल 180 के बराबर ही मान के चलेंगे। क्लियर? तो यहां पर ये जो 1260 आया है ना, इसको हम क्या मान के चलेंगे, लाइक इट इज 180 डिग्री। नाउ सी cosec 180 प्लस थीटा। अब 180 प्लस थीटा, 180 डिग्री रेफरेंस है मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगा। 180 डिग्री रेफरेंस है मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो फंक्शन में हम लोगों के पास में 180 है, तो यहां पर cosec का cosec एज इट इज रहेगा। ठीक है, यहां पर cosec क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। अब सुनना ध्यान से, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, 180 plus theta means third quadrant, and in the third quadrant cosec is negative। क्यों? थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा एंड cot थीटा पॉजिटिव रहता है, दैट मींस cosec इज नेगेटिव। तो यहां पे लगेगा माइनस cosec 180 प्लस थीटा इज माइनस cosec थीटा, सो cosec 60 दैट मींस 2। तो आंसर इज -2। दिस इज योर आंसर, -2। क्लियर? देन इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। We are taking one more question like this. Sin 765 डिग्री। Now what is sin 765? फिर से हमको यहाँ पे सर्कल घूमना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास रेफरेंस मैक्सिमम कितना है 360 डिग्री। 360 के बाद मुझे एक और बार सर्कल कंप्लीट करूंगा तो 720। अब 720 पर आया, so I have come nearest to the 765. I can write 36 sin 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री, साइन 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री। देखो अब क्या होगा, साइन 720 क्या, एक बार ये 360 कंप्लीट, एक और बार ये 360 कंप्लीट, मींस 720 इज द पोजीशन ऑफ 360 ओनली। 720 को मैं किसके जैसा मान सकता हूं, 360 के जैसा मान सकता हूं। तो अब ये 720 को आई विल कंसीडर इट एज 360 डिग्री। नाउ साइन 360 प्लस थीटा, 360 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। इफ आई एम हैविंग 360 डिग्री देन द फंक्शन विल नॉट चेंज। तो साइन थीटा का साइन थीटा। नाउ 360 प्लस थीटा। अब अगर मैं क्वाड्रेंट में, ये 360 हुआ, अगर इफ आई एम एडिंग समथिंग इन 360, अगर 360 में कुछ ऐड कर रहा हूं, तो 360 में कुछ ऐड कर रहा हूं तो अगेन आई विल शिफ्ट इनटू फर्स्ट क्वाड्रेंट। 360 में कुछ एंगल प्लस कर रहे हो तो सर्कल कंप्लीट करके वापस अगर एंगल प्लस कर रहे हो तो हम वापस किस पे आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ गए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और फिर वापस किस पे आ गए, फर्स्ट पे आ गए। तो अब अपन किस पे आ गए, 360 प्लस थीटा, दैट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, ये हमने पढ़ के रखा है। पहले तो 360 है इसलिए फंक्शन चेंज नहीं हुआ, और अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, दैट मींस ऑल द फंक्शन विल बी पॉजिटिव, दैट मींस आवर आंसर विल आल्सो बी पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव सिंबल एंड एंगल इज 45 डिग्री। नाउ साइन 45, साइन 45 इज 1/√2। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पे अभी ना हमने सारे ये जो क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस के फॉर्मेट जो पढ़े ना, दैट इज फॉर रेड डिग्री। सारे जो क्वेश्चंस अभी हमने क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा है, क्वाड्रेंट सिस्टम में सारे फॉर्मूलेस का क्रिएशन पढ़ा, और उसके बाद में हमने क्वेश्चंस करे जो डिग्री में आते हैं फॉर मोर देन 0, 30, 45, 60, 90। ये तो हमको एंगल्स पता है, लेकिन उससे ज्यादा आते तो कैसे ब्रेक करना ये हमने सीखा। मान लो कि 135 डिग्री आता तो उसको मैं लिख देता 180 माइनस 45। मान लो अगर 120 डिग्री आता तो 120 डिग्री को आई कैन राइट 90 प्लस 30 लिख दूं फिर आंसर निकाल लूं, या फिर 180 माइनस 60 लिख लूं फिर आंसर निकाल लूं। बोथ द केसेस में आंसर हमेशा सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने लिखा tan 120 डिग्री, तो tan 120 को लिखने के दो तरीके हैं। या तो मैं tan 120 को लिख दूं 180 माइनस 60 और tan 90 प्लस 30। नाउ यहां पर 180 फंक्शन है तो फंक्शन विल नॉट चेंज, एंगल रेफरेंस एंगल इज 120, दैट मींस फंक्शन विल नॉट चेंज। 10 यहां पर 90 है रेफरेंस एंगल, दैट मींस फंक्शन विल चेंज, दैट मींस cot। नाउ 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा इज सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan इज नेगेटिव, एंगल इज 60 डिग्री। इधर tan 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 फंक्शन चेंज हो गया 90 के कारण, बट 90 प्लस 30 इज अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट, फंक्शन विल रिमेन नेगेटिव बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहता है, tan नेगेटिव रहता है, तो यहाँ नेगेटिव, एंगल इज 30। नाउ माइनस tan 60 is √3 and cot 30 is again √3, we are having the same answer। तो ये हमारी प्रायोरिटी या चॉइसेस के ऊपर है कि हमको कैसे सॉल्व करना है। दोनों केसेस सही है, दोनों में आंसर करेक्ट आएगा एंड सेम आएगा। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग रेडियन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि अगर यही एंगल्स रेडियंस में दिए जाते हैं तो रेडियंस को कैसे ब्रेकआउट किया जाता है। ठीक है, टिल देन अभी इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।